Very warm welcome to all the dear students. Now we'll start with the third chapter, that is the issue of shares. From this chapter we'll learn what is meant by issue of shares, what are the methods of issue of shares, then allotment of shares, its provisions and conditions for allotment of shares, then share certificate, transfer of shares, transmission of shares, and the difference. From this chapter, the topics which has been omitted for the session 2020 and 21 are classification of share capital, procedure for allotment of shares, calls on shares, forfeiture of shares, and the surrender of shares. So we are not going to learn these topics because it is not going to come in the coming board exams. So now we'll start with the issue of shares. Issue of shares. So whenever the company starts or commences its business, so at the initial stage it requires the huge amount of capital. मीन्स जब भी अपन कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई कंपनी शुरू करना है या कोई शॉप ओपन करना है तो अपने शुरुआती समय अपने को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। या फिर जब भी कंपनी को अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, न्यू ब्रांच ओपन करना है या अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, चेंज करना है, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना है बिजनेस में, या कोई ओल्ड डेब्ट्स पे करना है। ओल्ड डेब्ट्स में आपने अगर कोई बैंक से लोन गिन लेके रखा है और अगर आपका बिजनेस सपोज इन बिटवीन अच्छा नहीं चल रहा है, वो लोन पे करना है, तो उसके लिए भी अपन अपने को कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल द केस ऑफ द कोविड, अभी कोविड की वजह से बहुत से बिजनेस नहीं चल रहे, फ्लुएंटली नहीं चल पा रहे, जिसकी वजह से उन लोग उतना कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना लोन गिन रिपे कर सके। तो ऐसे में अपने को और एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो ये फंड्स जो अपन रेज कर सकते हैं, सो इट कैन बी रेज्ड बाय टेकिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक or by issuing the shares, debentures or the bonds. So by this way we can raise the funds. Now if the company is raising the funds by way of issue of shares, it may be the equity shares or it may be the preference shares, is known as issue of shares. अब issue of shares का मतलब होता है कि अपन जनरल पब्लिक को ऑफर देना कि हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करो बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस। मीन्स अब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन गिवन टू द जनरल पब्लिक फॉर द इशू ऑफ शेयर्स कि हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करो, उसको बोलते हैं अपन इशू ऑफ शेयर्स। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. First, that is public offer. Under public offer, again it is divided into two, that is IPO, initial public offer, and FPO, that is further public offer. Second, that is existing equity shareholders. Under existing equity shareholders, it is divided into two, that is right issue and the bonus issue. Third, that is existing employees. Under existing employees, first that is ESOS, that is employee stock option scheme. Second, that is ESPS, that is employee stock purchase scheme. Third, that is SARS, that is stock appreciation rights scheme. And fourth, that is sweat equity. Then last, that is private placement. Under private placement, it is divided into two, right issue and the preferential allotment. So these are the methods of issue of shares. Now we will go with one by one in details. First method of issue of shares, that is public issue or public offer of shares. It means offering the shares to the public by issuing prospectus. तो जब भी अपन जनरल पब्लिक को ऑफर देते हैं by inviting to purchase the shares of the company through prospectus is known as public offer. अब under public offer, a company can use two pricing methods. First, that is the fixed price issue method. Under this method, the price and the quantity at which shares are offered are stated in the prospectus. It means that the company by itself fixes the prices and the quantity at which the shares can be purchased by the general public. Means per share कितने वैल्यू का रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर्स एट 10 रुपीज़ पर शेयर. So this can be assigned by the company itself. So company can issue the shares at par or at premium. At par means अगर सेम फेस वैल्यू के शेयर सेम फेस वैल्यू में इशू कर रहे हैं, मीन 10 रुपये का शेयर आप 10 रुपये में ही इशू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एट पार. और एट प्रीमियम मीन्स अगर आप 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू कर रहे हो, मीन 2 रुपये ज़्यादा में, तो दैट इज नोन एज द प्रीमियम. सो दिस डिफरेंस ऑफ 2 रुपीज़ इज नथिंग बट प्रीमियम.
Now this fixed price issue method, it can be used for all types of issues, that is public issue, right issue, then employee stock option scheme, etc. Company can issue the shares either at par or premium, but according to the Companies Act 2013, it has prohibited to issue its shares at a discount, means फेस वैल्यू से कम वैल्यू में शेयर अपन इशू नहीं कर सकते। 10 रुपये का शेयर अपन 9 रुपये में इशू नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी इशूड एट द लोअर प्राइस। नाउ सेकेंड प्राइसिंग मेथड, दैट इज बुक बिल्डिंग मेथड. Book building method means issuer company determines the number of shares and the issue price at which shares will be sold by bidding process. Bidding process means that is बोली लगाना, means कंपनी एक पर्टिकुलर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स अजाइन कर देती है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस को या ग्रुप ऑफ कंपनीज या इन्वेस्टर्स को कि आप हमारे कंपनी की शेयर्स की बोली लगाओ, तो उसको बोलते हैं अपन बिडिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर्स कैन बी इशूड एट 5 रुपीज़ पर शेयर, मीन्स यहाँ से आपकी बोली शुरू होंगी. सेकेंडली issues red hearing prospectus which contains the price band, that is the issue prices, and the investors buy on it. अब ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस ये कंपनी सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को इशू करती है, जिसमें कंपनी पर्टिकुलर जो रेंज रहेगी प्राइस की, मीन्स आप 5 रुपये से लेके 50 रुपये तक शेयर्स की बोली लगा सकते हो, वैसे ही कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स की भी बोली आप लगा सकते हो. जैसे कंपनी ने अजाइन कर दिया होगा कि अगर आप बोली लगा सकते हो 5,000 से 1 लाख तक के शेयर्स के बीच में, तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती है, जिसको बोलते हैं अपन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. अब ये जो इन्वेस्टर्स बोली लगाते हैं उसमें जो सबसे कम जो इन्वेस्टर ने बोली लगाई होंगी उसको बोलते हैं अपन लोअर प्राइस या तो फिर फ्लोर प्राइस, और जो इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई होंगी हाईएस्ट प्राइस, दैट इज़ नोन एज द कैप प्राइस और द सीलिंग प्राइस. इसके बाद फिर कंपनी डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर शेयर्स के प्राइसेस क्या रहना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द बीडिंग, मीन्स जो भी बीड की होंगी या जो भी बोली लगाए होंगे इन्वेस्टर्स ने, उसके बेस पे कंपनी फिर पर्टिकुलर शेयर्स के प्राइसेस फिक्स करती है. तो जो फाइनल प्राइस रहता है शेयर्स के विच हैज़ बीन ऑफ to the investors is called as cut-off price, which has been based on the highest or the best price at which all shares on offer can be sold. Means ये कट ऑफ प्राइस रहती है फाइनली जो कंपनी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द बिडिंग कि अब ये प्राइस पे अपन शेयर्स जनरल पब्लिक को बेच सकते. एंड दिस मेथड इज यूज्ड for public issue, that is the IPO, initial public offer, and the FPO, that is the further public offer. Now we'll go with the small example of the book building method. For example, कि Reliance India Company Limited, if it offers 10 lakh shares at the rate 5 per share, which ranges for bidding from 5 rupees to 50 rupees and in multiple of say 5, and maximum the investors can bid up to 5 lakh shares. मीन्स जो भी इन्वेस्टर्स है वो 5 रुपये से लेके मिनिमम मैक्सिमम 50 रुपीज़ तक की बोली लगा सकते हैं, और मिनिमम 50,000 शेयर्स से लेके 5 लाख तक के शेयर्स की बोली लगा सकते हैं. तो इसमें सपोज अगर ए इन्वेस्टर्स ने बोली लगाया होगा 1 लाख शेयर्स की एट द ₹10 ईच, दूसरे इन्वेस्टर्स ने बोली लगाया होगा 150 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, तीसरे ने लगाया होगा कि फॉर एग्जांपल थर्ड इन्वेस्टर्स मे बी फ्रॉम 50,000 एट द रेट 15 ईच, फोर्थ इन्वेस्टर्स ने बोली लगाई होंगी 3 लाख एट द रेट 25 ईच, फिफ्थ इन्वेस्टर्स 2,50,000 एट द रेट 35 ईच. तो इस तरीके से हो सकता है 5 इन्वेस्टर्स ने बोली लगाई. अब इसके बेस पे कंपनी डिसाइड करेंगी कि उनको अपने पर्टिकुलर शेयर्स के प्राइसेस कितने अजाइन करना है, कितने तक रखना है. तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने अजाइन किए होंगे कि वो अपने शेयर्स के प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द बिडिंग
की पर शेयर की वैल्यू वो 25 रखेंगे। तो इसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा, एक्सेस प्राइसेस जो भी रहेगा कंपनी के पास, जैसे फॉर एग्जांपल फिफ्थ इन्वेस्टर ने बोली लगाई थी 2,50,000 शेयर्स की एट द ₹35। तो इसमें जो 10 रुपये एक्सेस है, कंपनी ने 25 फिक्स किए हैं, तो 10 रुपये इसके एक्सेस जो रहेंगे वो कंपनी उनको रिफंड कर देंगी। और जो बचे हुए इन्वेस्टर्स है ए, बी और सी, तो उन्होंने कम 25 से कम की बोली लगाई है, तो जो बचे हुए पैसे होंगे तो वो पैसे कंपनी उनको बोलेगी डिफरेंस अमाउंट कि आप पे कर दो करके। तो इस तरीके से बोली लगाई जाती है और उसके बेस पे अपन कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस फिक्स करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। Now the methods of public offer, it is divided into two, that is the IPO and the FPO. IPO, that is the initial public offer. Initial public offer यानी it refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time. Means सबसे पहले जब भी कंपनी शुरू होती है at the initial stage, सबसे पहले जब अपन इन्विटेशन देते हैं जनरल पब्लिक को for the issue of shares, उसको बोलते हैं अपन initial public offer. So after IPO, a company becomes a listed company and its shares can be bought and sold by investors in the open मार्केट. लिस्टेड कंपनी मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर देने के बाद फिर कंपनी को अपना नाम कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है. उसके बाद कंपनी लिस्टेड कंपनी में शामिल हो जाती है और उसके जो भी लिस्टेड कंपनी रहती है वो कंपनी के शेयर्स अपन ओपन मार्केट में इजीली परचेज भी कर सकते हो और सेल आउट भी कर सकते हैं. और दूसरी मेथड है FPO, दैट इज़ द फर्दर पब्लिक ऑफर, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. सो व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इट इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर. फर्दर पब्लिक ऑफर लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ए कंपनी. मीन्स एक बार अपन इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट टाइम अपन इन्विटेशन दे दिए, तो इन फ्यूचर में आगे जाके कंपनी अगर फिर से शेयर्स इशू करती है तो उसको बोलते हैं अपन फर्दर पब्लिक ऑफर. Means after initial stage, means at the later stage, whenever the company makes the offer to the general public for the issue of shares, or after IPO, that is known as the further public offer. And due to further public offer, the subscribed capital of the company will obviously going to rise. So this was the first method of issue of shares, that is public issue or the public offer of shares.